ہر شخص کے دل کے قریب کچھ شہر ہوتے ہیں، اور شاید میرے لیے ان میں سے ایک شہر وادی سرن کوٹ ہے۔ ایک شہر کا اتہاس بیان کرنے کے لیے تو شاید کاغذ کے ہزاروں پنے بھی کم پڑ جائیں، لیکن ہم آپ کو اس خوبصورت سے شہر کا اتہاس ایک تحریری شہادت کی شکل میں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ سرن کوٹ، جو کہ جانا جاتا ہے اپنے راجہ مہاراجاؤں کی میراث کے لیے، ضلع پونچھ میں کی گود میں بسی ایک کم درجہ بند وادی ہے۔ اگر بات کریں سرن کوٹ کی تو اسے چھوٹا کشمیر کہا جاتا ہے، جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر بات کی جائے یہاں بہتے دریائے سرن کی یا سرخ سبز کھیتوں کی، بات کی جائے کھیتوں میں کام کرتے زمینداروں کی یا لذت دار اس مکی کی روٹی کی، وادی سرن کوٹ ضلع پونچھ میں ایک اپنی الگ پہچان اہمیت رکھتی ہے۔ 11 سال کا تو پاکستان چلے گئے 47 میں، وہاں میں نے 1951 میں 5ویں پاس کی جیلم شمالی مرلہ، 51 میں وہاں 5ویں پاس کی تو یہاں آگے 52 میں، تو 1 سال کے بعد پھر یہاں پہلے ایک ٹیو ہوا کرتا تھا پی این گنجو فرام کشمیر، اس میں پہلے داخل نہیں کیا۔ آپ پاکستان گئے تھے، میں کون جرم کیا گئے تھے آگے واپس، تو 1953 میں ہم 5ویں میں یہاں 6ٹھی میں داخلہ لیا، جبکہ شیخ عبداللہ ایز اے پرائم منسٹر 8 اگست 1953 رات کو گلمرگ ڈاک منگلہ میں سوئے تو صبح خود جیل سے قیدی نکلے، رات کو ٹیک اپ کر دیا، بخشی غلام محمد پرائم منسٹر بن گیا اور شیخ صاحب 11 سال میں۔ اس کے بعد پھر میں نے 1958 میں 5ویں میٹرک کیا تو 60 میں ٹیچر لگ گیا، 40 سال میں نے سروس کی ادھر ہی، تو اس کے بعد 2000 میں ریٹائر ہو گیا۔ 2001 میں حج کے لیے چلا گیا، ادھر سے فاروق عبداللہ ایز اے چیف منسٹر، ادھر سے پرویز مشرف ایز اے صدر، ہم نے وہاں اکٹھے حج کیا، 45 دن رہے، اس کے بعد پھر گھر آ گیا، ریٹائر ہو گیا۔ تو ہماری فیملی جو ہے راجوری سے آئی ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہمارے پردادا آئے راجوری سے، وہاں ہماری 700 سال حکومت رہی، بزرگوں نے کی ہے، راجہ اگر خان ہوا آخری راجہ، تو جس کو کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ والی پنجاب کا گورنر تھا، تو اس نے پھر ان کو اریسٹ کیا، یہاں یہ باٹا توڑیاں سے راجہ اگر خان کو تو لے گئے، جب ادھر جا کے تو اس بیچارے کو مار دیا۔ اس کے بعد جناب یہ سرن کوٹ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے جو ہے یہاں قلعہ، سرن کوٹ لفظی مطلب ہے سونے کا قلعہ۔ یہ پنج جو تھا بی جی بمر گلی اور دیرا گلی سے پرے، یہ راجوری جو ہے یہ جموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہاں پونچھ میں راجہ موتی سنگھ ہوا ہے، پھر آگے بلدیو سنگھ، آخر رتن لال، شیو رتن ٹکا جو ہوا ہے وہ 47 سے، تو یہ اس کی پونچھ کی 4 تحصیلیں تھیں، ڈائی چلی گئی پاکستان میں تو وہ آزاد کشمیر بن گیا، 1.5 یہاں رہ گئی، آدھی حویلی اور تحصیل مینڈر آدھی، تو پھر یہ ڈسٹرکٹ پونچھ جو بھاملہ تک چلا گیا، بھاملہ وہ آگے کالی تار سے ادھر، وہاں 3 ڈسٹرکٹ ملتے ہیں، ڈسٹرکٹ ریاسی، ڈسٹرکٹ جموں اور ڈسٹرکٹ پونچھ۔ پھر 1976 میں شیخ عبداللہ پھر چیف منسٹر بنے، تو انہوں نے ڈسٹرکٹ پونچھ بی جی سے ادھر ڈسٹرکٹ پونچھ تو آگے ڈسٹرکٹ راجوری کر دیا، اس طرح یہ تقسیم ہوا۔ یہ آگے ایک جگہ ہے جہاں وہ قلعہ ہے پونچھ، اس سے پار
चलास राजा पहुंच जाता था, चलास से फिर आगे चक्कन का बाग जिसे आजकल कहते हैं। तो मदारपुर एक जगह है, मदारपुर से कोटली जो आज़ाद कश्मीर आ गया है, कोटली से जाता था महाराजा खोईलट्टा, खोईलट्टा से ये नशहरा से आगे एक जगह बैरी पतन पुल है, वहाँ से तो फिर सुंदरबनी का असली नाम था कांगड़ी पजवाल। ये हमारे रिश्तेदार हुए हैं राह गुलाम से, वो सुंदरबनी वो वहाँ के थे, पजवाल के नवाब थे। 47 में पाकिस्तान चले गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। फैमिली उधर ही है, वजीराबाद गुजरांवाला में आबाद है। तो वो रूट था राजा पूंछ का। ठीक है, राजा ये जो था हरी सिंह, ये और ये पूंछ वाले रिश्तेदार थे, लेकिन उसका अपना डिस्ट्रिब्यूटरी अलग था। ये पूंछ जो था ये इस राजा का था। खाना उस वक्त क्या, मक्की की रोटी, लस्सी, ये सरसों का साग, यही ग़िज़ा थी। अपनी पैसे रखे चलता था। चावल था, एक टाइम चावल लेते थे। जब हमें दराबा से लेकर सुरनकोट में 6ठी जमात में दाखिल किया गया तो उस वक्त हमें पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत थी। किताब ख़रीदनी है तो पुंछ से जाके मिलेगी, पेंसिल और पेन ख़रीदना है तो पुंछ से मिलेगा, स्याही की दवात ख़रीदनी है तो पुंछ से मिलेगी। यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं हुआ करती थी। उसके अलावा कोई सड़क नहीं थी। यहाँ से सुरनकोट पैदल हम जाया करते थे और बीच में से 2 जगहों पर दरिया भी क्रॉस करना पड़ता था। और इस तरह से सवेरे जाना और फिर दिन को पढ़ाई हासिल करने के बाद छुट्टी होकर शाम को 6 बजे 7 बजे अंधेरे में घर पहुंचना। और रास्ता भी दुश्वार, कोई आसानी नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। और बड़ी मुश्किलात से हमने वहाँ 10th तक एग्ज़ाम पास किया 10th का। फिर जब कॉलेज यहाँ 2005-06 में सैंक्शन हुआ तो इसको वहाँ कहीं बेले में बनाया जा रहा था, जहाँ के पानी आए और लेके चला जाए। उसके लिए हमने बाज़ाब्ता स्ट्रगल की, धरने दिए और गवर्नमेंट के नोटिस में लाया कि कोई अच्छी जगह जो है वहाँ कॉलेज दिया जाए, रखा जाए। फिर इसके बाद टीम आई, डीसी साहब आए और कुछ लोग आए, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग आए। उन्होंने देखा, तो जब देखा नीचे बेले में तो वहाँ ख़तरा है। फिर इधर जो एक जगह दिखाई गई मिर्ज़ा मोड़ के पार, और जब ये जगह दिखाई दी तो ये मिर्ज़ा रज़ाक साहब हैं, उनकी जगह थी। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऑफ़र कर दिया कि मैं देने के लिए तैयार हूँ अगर यहाँ कॉलेज बने। उनकी ऑफ़र के बाद भी फिर भी लोगों ने कोशिश की, नहीं जी नीचे बनना चाहिए, उधर बेले में बनना चाहिए ताकि पुंछ वाला भी आ सके तो इधर वाला भी आ सके, रसाने वाला भी आ सके। हमने कहा नहीं, बना तो इधर ही बनना चाहिए का मिर्ज़ा मोड़ के सामने पार मिर्ज़ा रज़ाक के पास जो ज़मीन है। तो फिर लास्ट में उस स्ट्रगल्स हमारी के बाद, लिखा पढ़ी के बाद और रिमाइंडर्स के बाद फिर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और वहीं कॉलेज बना। और हमें लगता है कि जो तालीम हासिल करने में मुश्किलात हमने देखी हैं वो अब हमारी आने वाली जनरेशन नहीं देखेगी, बल्कि अंदर से निकलेंगे और कॉलेज में तालीम हासिल करके वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की और इस तरह से हमारी उस स्ट्रगल का नतीजा निकला कि कॉलेज मुनासिब जगह पे कायम हुआ। وقد هاجروا بها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين काम करते चले आए हैं, मुदस्सर बनाया है। और फिर साथ में यहाँ जो मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद थी टीन की, उस हाजी खुर्शीद साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो उस मस्जिद के बारे में बताते हैं कि यहाँ 1960 से पहले यहाँ के जो बुजुर्ग मौजूद मुसलमान थे, समोट के सरदार खाते के और बजाड़ खाते के और पार बंगलोर के पीर जमात रिशा साहब, पीर मतू साहब और भी जो उनके साथ जो लोग उनके मुरीद थे, उन लोगों ने मिल के ये मस्जिद सन 1960 से पहले बनाई थी। टीन की मस्जिद थी, उसमें जो टीन थी वो ठेकेदार गुलाम उद्दीन साहब
पुंछ के बड़े खैरख्वाह मुसलमान हुए, उन्होंने इस मस्जिद में टीन डाली हुई थी। और इसके अलावा भी रजौरी में, शाहदरा में, मेंढर में, पुंछ में जितनी टीनें थी मस्जिदों की, वो गुलामुद्दीन साहब डालते थे। तो फिर सन 1990 के बाद जब हम यहाँ मुस्तकिल तौर मदरसे में आ गए, तो यहाँ पीर मतू साहब की सदारत में और बरेली शरीफ से सैयद आरिफ साहब और कुछ और उलमा इकराम साथ में आए। तो यहाँ एक उन मस्जिद के नाम पर चंदा किया, फिर आस्ता आस्ता काम स्टार्ट हो गया। और हाजी साहब की सदारत में और पीर साहब भी यहाँ मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में ये मस्जिद बनती रही। तो ये मस्जिद 2-4 साल में मुकम्मल हो गई, यानी डबल स्टोरी। तो साथ में ये मदरसा भी हमने बहुत बड़ा बना दिया, इसमें पढ़ाते रहे। तकरीबन हमको यहाँ काम करते हुए 35 साल हो गए इस मदरसे में। तो सबसे पहला मदरसा जो है वो दारुल मर्ज़ सुल्तानिया जहाँ मैं बैठा हूँ। इससे पहले लोग मकातिब में कुरान शरीफ नाज़रा वगैरह पढ़ लेते थे, और फिर कुरान शरीफ पढ़ लिए बहुत है, लेकिन मदरसे को सही तश्कील जो जिसको दरस निज़ामी आलिम फाजिल मुफ्ती या हाफिज़ व कारी की जो डिग्री है, वहाँ सबसे पहले इस मदरसे को हमने वजूद बख्शा। और उसके बाद में आस्ता आस्ता जो लोग यहाँ से पढ़ते गए, आस्ता आस्ता मदरसा बनाते गए। तो इस तरह पुंछ में, मेंढर में, कश्मीर में भी और करगिल तक, बल्कि बंगाल और यूपी और पंजाब में अक्सर मुसलमान जो आलिम हाफिज़ कारी हैं वो इसी मदरसे से पढ़े, हमारे मदरसे से पढ़ के जाते रहे। तो बीच में यहाँ मुसलमानों को शहर के अंदर कोई ईदगाह भी नहीं थी, यहाँ से नीचे जाना पड़ता दरिया के किनारे। तो रास्ता भी बहुत तंग था, आबी रकबे थे, कीचड़ और फिर फिसलन, लोग गिरते, लोगों को बड़ी तकलीफ होती, सड़कें भी नहीं थी। तो फिर सन 1990 के बाद जब यहाँ गवर्नर साहब थे, उनकी हुकूमत में हमने एक जिस वक्त गुजर बकरवाल को एसटी मिला है, उस वक्त पहाड़ियों ने भी एक डिमांड बढ़ाई थी कि हमको भी ये मिलना चाहिए शेड्यूल ट्राइब। तो उसमें हम लोग यहाँ से जम्मू के थे, जिसमें हमारे बड़े भाई वकील साहब भी थे, मिर्ज़ा अरशद साहब भी थे, और अनायतुल्लाह खान इंस्पेक्टर फैसलाबाद के मलिक, हमीद मनास। तो हम लोगों ने गवर्नर के मुशीर से इस ईदगाह के लिए वहाँ से लिखवाया, और फिर हमने इस पर महराब बना लिया ईदगाह में। उस 3.5 कनाल थी, फिर उसके बाद में ये 7.5 कनाल हो गए। फिर उसके बाद ये 14 कनाल ज़मीन जो फॉरेस्ट की थी, कुछ रेवेन्यू की थी, मिल के इसको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसमें ताउन किया, सब ने मिल के ये ईदगाह मुसलमानों के हवाले कर दी। इस तरह हमने ये ईदगाह भी बनाई और मदरसा बनाया और मस्जिद भी बनाई। और ज़्यादातर जोर हमने तालीम ही पर दिया ताकि लोग तालीम हासिल करें, कुरान और हदीस और इस्लाम को जानें, इस्लामी तालीम को। इससे पहले भी यहाँ लोग बड़े पक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर कोई ऐसा मदरसा नहीं था। चूँकि 47 के बाद मुसलमान उथल पुथल हो गए थे, तो मदारिस का सिस्टम ख़त्म हो गया था। लिहाजा हमने ये 90 के बाद ये मदरसा कायम किया, और उसके बाद से मुसलसल मेंढर में, पुंछ में, रजौरी में, जम्मू में, हर जगह मदरसे बन गए। पंजाब में भी मदरसे बन गए, जिसमें हमारे इस मदरसे के पढ़े वो लोग हैं। ये 1957 तक ये जगह वीरान थी, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। तो 1957 में हमारे यहाँ के जो मुखिया लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इकट्ठे हुए। तो एक सरदार गुलाम हुसैन खान साहब यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के राजपूत नंबरदार थे, तो उन्होंने इस मंदिर में एक छोटा सा कमरा बना के नींव पत्थर रखा, बल्कि उसमें लकड़, काठ, मजदूरी सब सामान दे के इसको मंदिर को तैयार किया। और इसके साथ वो इस मंदिर के कोई 6-7 साल प्रधान भी रहे, मैनेजमेंट चलता रहा। थोड़ी पॉपुलेशन थी, आस्ता आस्ता पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों में शोर आने लगा, थोड़ा इसको और बड़ा किया गया। करते करते
जो एजुकेशन आ गई, लोगों के पास धन आना शुरू हो गया, सब लोगों ने मंदिर के डेवलपमेंट के लिए अपने घर से योगदान दिया। तो करते करते ये मंदिर यहाँ पहुँचा। इसमें भी हमारे एक बुजुर्ग मास्टर तोला राम जी हैं, वो 110 साल की आयु में अपना देह त्यागा है। उन्होंने इस मंदिर के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट सहे हैं और बहुत मेहनत की है। उन्होंने 2 रुपये इकट्ठे करके इस प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके बनाया है। हर लिहाज से तरक्की में हम जो है वो बाकी रियासत के बाकी इलाकों से हम लोग महरूम रहे, और सबसे बड़ा उसकी वजह जो रही कि सप्ताह के गलियारों में ऐसी साजिश हमेशा होती रही कि किस तरीके से रजौरी पुंछ के लोगों को आपस में बांट दिया जाए, और बांट के जो है वो सियासत डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ हमेशा चलती रही। और उसमें सुरनकोट भी आता है, पूरा खिता पीर पंजाल आता है। उसमें हमेशा जो है 2 कम्युनिटीज़ में जो है जो लोग सियासत में रहे, वहाँ ये हमेशा साजिश रही कि यहाँ लोगों को गुज्जर और पहाड़ी के बीच में बांट दिया जाए और सियासी नज़रिया लोगों का यहाँ बदल दिया जाए। एक्सप्लॉयटेशन की गई, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट मॉडल पे पॉलिटिक्स कभी रजौरी पुंछ में हुई नहीं। सुरनकोट भी उसी का शिकार हुआ, और हमेशा लोग जो है वो उनको एक्सप्लॉइट करके जो है कम्युनिटीज़ के नाम पे दिया गया। उसका असर ये हुआ कि हम लोग तरक्की के लिहाज में बहुत पीछे रह गए। यहाँ के स्कूलों के जो हालात हैं वो बदतर रहे। यहाँ सड़कों का जाल नहीं बिछ पाया। इतनी अच्छी गवर्नमेंट की PMGSY के रेवोल्यूशन जो स्कीम आई थी, उसके बावजूद यहाँ हमारे इलाके आज भी लोग 2 घंटे पैदल चलते हैं। यहाँ के अस्पतालों की हालात बदतर थी। यहाँ के हमारे जो नौजवान हैं उनको कितनी मुश्किलात हैं। तो कई किस्म की परेशानियाँ जो आज भी हमारे लोग सहते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वापस मौका मिला, और गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया था कि यहाँ पंचायती राज को जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से लागू करने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर जो है पूरा इम्प्लीमेंट किया। पंचायत के इलेक्शन जहाँ हुए, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, तो मुझे यहाँ लोगों ने कहा कि आप वापस आओ और यहाँ हमारी खिदमत करो, यहाँ हमें ज़रूरत है। तो मैं अपने सुरनकोट के लोगों का, और ख़ासतौर पे सुरनकोट A जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लोगों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। उन्होंने बहुत ये पीटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, ज़ात पात से ऊपर उठ के, पहली बार ऐसा हुआ कि सारे कम्युनिटीज़ ने एक साथ उठ के इलाके की तरक्की के लिए जो एक साथ खड़े होकर मुझे चुना, और मैं DDC का मेंबर बना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि सुरनकोट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 1-1.5 सालों में हमने एक न्यू मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स दिया है। हमने रवायती सियासत को ख़त्म करते हुए एक नया निज़ाम तैयार किया है। कि क्या क्या चीज़ें होती थी हमारे टाइम। बड़ा सादा, बड़ा अच्छा और बहुत ही बेहतरीन दौर था। किसी किस्म की कोई भी उसमें जो मिलावट नहीं थी। जब मैं मिडिल स्कूल जाया करता था 6th तक, तो एक स्कूल बैग था हमारे पास, जो सादा सा एक बैग था, उसको झोला टाइप बोलते थे, जो कंधे के साथ लगा के हम जाया करते थे। तो मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था। मैं अपनी तालीम जो है वो हासिल करने के लिए जब घर से निकलता था तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र था जो हमने पैदल तय करके अपने स्कूल तक जाना था। मेरी वालदा स्कूल टीचर थे, वो जब स्कूल में पढ़ाते थे तो मुझे साथ में लेके जाया करते थे। मैं कभी कभार उनके अलावा स्कूल में जाता था तो मैं अपना स्कूल बैग जो है वो एक छोटा सा नाला था उसी में रख के तो लोगों के खेतों में जाया करता था खीरे वगैरह ढूंढने। तो वो एक प्यारा सा मोमेंट था। तब के दौर में खीरे तोड़ना ऐसा था कि जैसे किसी का कत्ल कर दो। तो वो एक बड़े प्यारे मोमेंट थे जो मैंने आज तक मैं जब याद करता हूँ तो बड़ी मासूमियत महसूस होती है। यहाँ गांव का स्कूल छोड़ने के बाद मैं जब समोट शहर के स्कूल में गया तो वहाँ मैं 1 साल रहा। वो 8th तक था मिडिल स्कूल। उसके बाद वहाँ भी मेरी मतलब दिल नहीं लगता था, मैं स्कूल जाता नहीं था, फिल्में देखने चला जाता था, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था। तो उसके बाद मुझे वहाँ से एकेडमी में भेज दिया गया घर वालों की तरफ से। तो 1 साल में एकेडमी में रहा। 7th से 8th तक मैं शेर कश्मीर एकेडमी थी उसमें रहा। फिर जब मैंने एकेडमी पास की तो वहाँ से मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में गया। वहाँ 12th तक मैंने वहीं तालीम हासिल की।
वहाँ मेरी तहसील सुरनकोट के बहुत सारे लोग जो वहीं वो है, क्योंकि सुरनकोट का सबसे बड़ा तालीमी अदारा उस वक्त वही था, तो तमाम स्टूडेंट्स वहीं पढ़ने आते थे। वहाँ मेरा बहुत अच्छा सर्कल बना, मेरे बड़े प्यारे दोस्त बने वहाँ, वो आज तक मेरे साथ हैं। मैं पहला खुशकिस्मत आदमी हूँ जिसके साथ मिडिल स्कूल से जो लोग जुड़े थे और हायर सेकेंडरी स्कूल तक और कॉलेज तक, वो आज भी साथ हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद पुंछ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, ये 2003 की बात है। तो वहाँ भी बहुत अच्छा सर्कल रहा, बहुत ही सादा दौर था। तब हमारे यहाँ एक, मैं जहाँ रहता था, मेरा रूम जहाँ था वो एक रेडियो स्टेशन के पास ही मेरा रूम था। तो वहाँ फरमाइश देनी पड़ती थी अपना गाना जब कहीं बजवाना हो या अपनी पसंद का गाना, तो उसके लिए हमें एक फरमाइश देनी पड़ती थी। तो सारे दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे कि आज हमारा कौन सा गाना चलेगा, आज वो दिन है, शायद सैटरडे के दिन चलता था वो सॉन्ग। तो हम क्या करते थे कि एक 5 रुपये का वो लिफाफा लेते थे, उस पर अपनी फरमाइश लिखते थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के जो चौकीदार था उसको पटाते थे कि आज हमारी फरमाइश का गाना चलवा दो। तो वो फिर जब सॉन्ग हमारे नाम का बजता था, हमारा नाम लेके सॉन्ग आता था, तो वो बड़ी खुशी महसूस होती थी। ये छोटे छोटे मूवमेंट हमारे उस दौर में हुआ करते थे। और उसके बाद जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो बहुत सारी चीज़ों पर हमने रिसर्च की कि किस तरह से समाज में बेहतरी और लाई जाए। मैंने अपने तमाम फ्रेंड सर्कल को एक बार इकट्ठा किया, मुझे याद है ये 2008 की बात है, क्योंकि मैं देखता था कि स्कूलों की हालत अच्छी नहीं, कॉलेज में हालत अच्छी नहीं, सड़कें हमारे पास नहीं, बिजली हमारे पास नहीं, पानी हमारे पास नहीं, हेल्थ पर बहुत सारा काम करने के लिए है, एजुकेशन सेक्टर पर बहुत काम करने को है। तो इन चीज़ों में बदलाव के लिए मैंने अपने तमाम दोस्त इकट्ठे किए, तो उनको कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो वो फिर हमने एक डिसाइड किया, फिर दोस्तों की सपोर्ट से हमने एक पार्टी ज्वाइन की। उसमें मुझे मेरी और दोस्तों की परफॉर्मेंस देखकर जम्मू प्रोविंस के ओहदे पर मुझे बिठाया गया। हमने बहुत काम किया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और आज भी समाज की बेहतरी और भलाई के लिए काम करते हैं। तो मैं जो महसूस करता हूँ पिछले 15-20 सालों में मैंने जो बदलता वक्त देखा है, उसमें मैंने जो देखा वो यही था कि हमने बड़ा सादा और अच्छा दौर देखा और सदी को भी हमने बदला। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1983 की है, तो कम से कम 16 से 17 साल जो हैं हमने 19वीं सदी के जिए। फिर सदी जब बदली तो एकदम बदलाव आया और बहुत तेज़ी से दुनिया बढ़ पड़ी अपनी तरफ। हम जब अपनी रोड पे चलते थे, गांव की रोड पर, तो वहाँ हम रोड में क्रिकेट खेला करते थे और एक गाड़ी पूरे दिन में गुजरा करती थी। आज उसी गांव में 4 वे और हाईवे का काम शुरू हो रहा है। तो दौर बहुत तेज़ी से बदला और हर सेक्टर में जो है वो बदलाव आया, चेंजिंग आई। मैंने भी जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र, एक सियासी कैरियर छोटा सा जो मेरा 12-13 साल का है, उसमें मैंने जो देखा वो यही था कि बड़ा सादा दौर था, एकदम बदल के एडवांस हो गया। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन कुछ जो बड़े बेहतरीन चीज़ें हमसे छूट गई। हमारा कल्चर जो था वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है अपने तमाम सुनने वालों से कि अपने कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखें और अपनी माजी को कभी ना भूलें। आज मैं जिस गांव में मैं पढ़ा करता था मिडिल स्कूल में, आज मैंने सरपंच होने के नाते उन्हीं स्कूलों को बनवाया है, उन्हीं में फ़ंड दिया है, उन्हीं में मैंने काम करवाया है। और मैं आज ये कोशिश करता रहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और जो भी मेरे लेवल के मसाइल हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, उन पर काम करते हैं। मुझे अल्लाह ने मौका दिया, बहुत अच्छे दोस्त दिए, जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ भी बात कर रहा हूँ। और मैंने जो बदलाव लाने की कोशिश की, उसमें दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की है। उन्हीं की वजह से और उन्हीं की आंखों से मैंने दुनिया भी देखी और आज लोगों की खिदमत और सेवा कर रहा हूँ। बचपन का खेल जो हम खेलते थे वो बड़े ही सादा खेल हुआ करते थे और बहुत ही गांव के टाइप के खेल होते थे। क्रिकेट तो हम शुरू से खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल हमने बाद में शुरू किया जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, 8-10 साल के। तो वो अपनी ज़ुबान में हमें वो संतोलियाँ बोलते हैं, वो हम खेला करते थे। एक आदमी जो है वो एक कपड़े का बॉल बनाया करता था, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती थी, फिर सब मिलकर उसी बॉल से खेला करते थे। संतोलियाँ हमने खेली, खो खो हमने खेली
और लुका छुपाई हमने खेली तो ये बड़ी छोटी छोटी और साधारण गेमें थी जिनको खेलने में बड़ा मज़ा आता था। फिर जो बढ़ते गए फिर फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की गेमों में हमने हिस्सा लिया। मेरे बर्थ 1940 में हुआ था। उस वक़्त मेरे फादर वहाँ पर एक छोटी सी दुकान करते थे और उस वक़्त की दुकानदारी जो थी वो बिल्कुल एक बक्से में 2-4 चीज़ें रख के वही बेचते थे। उस वक़्त के पब्लिक की रिक्वायरमेंट सिर्फ नमक, चीनी, गुड़, शक्कर यही हुआ करती थी, या नस्वार या तंबाकू लोग ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। गाँव में बहुत गरीबी थी, बहुत पिछड़ेपन का रहन सहन था। किसी के घर में कोई खाने पकाने के बर्तन नहीं थे, मिट्टी के बर्तनों में खाने पकते थे। पाँव को लगाने के लिए घास के जूते होते थे और एक अपने घर की ऊन के कंबल के कपड़े बना के पहनते थे। कोई टेलर मास्टर नहीं था, कोई कपड़े सिलने की जांच नहीं थी। ज़्यादातर लोग भैंसे और गाय पाल के उस पर वक्त गुजारते थे। ज़्यादा गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। फल, वक्ती तौर के फल या जंगल के जो छोटे मोटे होते हैं जैसे सिमलू बोलते हैं या एक कनकोलीज होती हैं, ये लोग खाते थे। एक थोड़ा सा अनाज खाते थे, ज़्यादातर ये खा के अपना पेट भरते थे। तो उसके बाद उन लोगों की शादी के भी ऐसे रिवाज थे। ऐसे शादी कर दी, एक आदमी ने कपड़े लिए, वो कपड़े 10 आदमी पहन के उस पर शादियाँ करते थे। बहुत गरीबी थी। तो आस्ता आस्ता जो वक्त गुजरता गया तो राजे महाराजे का वक्त हुआ। 1947 हुई। 1947 में लोग भाग के चले गए, सारे मुल्क वीरान हो गए। फिर उस 47 के बाद जहाँ दोबारा फिर आबादी शुरू हुई, उस आबादी में थोड़े से छोटी छोटी दुकानें बननी शुरू कर दी। आप हैरान हो गए कि 4 गांव में एक दुकान थी, वो 6 गांव में एक आदमी आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। अगर किसी को चिट्ठी कहीं से आ भी जाती थी तो वो पढ़ाने के लिए उनको 4 गांव घूम के जाना पड़ता था। उस 47 के बाद छोटे छोटे स्कूल खुले, थोड़ी एजुकेशन शुरू हुई। हर गांव से 2-2, 4-4 लोग पढ़ने शुरू हो गए। वक्त गुजरता गया, नई नई गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, सड़कें बनी, ये रोड शुरू हुई। रोड में फिर छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई। जब गाड़ियाँ आई तो लोगों के लिए एक बड़ा चूबा था। 1970 में गवर्नमेंट 1960 में गवर्नमेंट ने एक रेडियो गांव के नंबरदार के घर लगा दिया। वो 1 घंटा बोलता था, वो एक अचंबा था लोगों को। उसके बाद आस्ता आस्ता छोटे बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए। फिर यहाँ सुरनकोट में एक प्राइमरी स्कूल था, वो उसको मिडिल स्कूल बना। उसके बाद ये हाई स्कूल बना। और ये सुरनकोट उस वक्त तहसील मेंढर और सुरनकोट में एक ही स्कूल था सुरनकोट का। मेंढर के लोग भी यहीं आके मैट्रिक तक पढ़ा करते थे। मास्टर लोग पढ़ाने वाले सब श्रीनगर कश्मीर से आए थे, यहाँ से कोई मास्टर नहीं था। औरतों को घर से बाहर निकलने की कोई इजाज़त नहीं थी। औरतें बाजार में घूम नहीं सकती थी, कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकती थी, ना ही औरतों को पढ़ाया करने का शौक़ था। 1950 में जब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ने लोगों को आस्ता आस्ता फैसिलिटीज़ दी। गांव में भी स्कूल खोले, लड़कियों के लिए भी स्कूल खुले। थोड़ी सी लोगों ने आँख खोली, जागृति आई, तो लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर, गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। जम्मू की तरफ मजदूरी लेबर शेबर करने के लिए भेजा। और लोग जब वहाँ से वापस आने लगे तो उन्होंने वहाँ का कल्चर छोटा मोटा, वहाँ से कपड़ा लेके आ गए, वहाँ से स्वेटर लेके आ गए, वहाँ से टेलर मास्टर लेके आ गए। कपड़ा सिलने की जांच शुरू हो गई। साबुन तेल आ गया, घर में नहाने धोने का काम शुरू हो गया। थोड़ी साफ़ सफाई का सिस्टम आ गया। जो आगे आगे बढ़ते हालात बढ़ते गए, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती गई, गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ आती गई। फिर थोड़ी सड़कों की वजह से छोटी नौकरियां लगनी शुरू हो गई। फिर गवर्नमेंट ने हर घर में, हर एजुकेशन के बाद छोटे छोटे 5वीं 8वीं 10वीं पढ़े हुए लड़कों को भी छोटी छोटी नौकरियां दी। लोगों के घर में पैसा आना शुरू हो गया थोड़ा, उससे लोग और डेवलपमेंट होने शुरू। फिर लोगों को जो आगे और वक्त बढ़ता गया, गवर्नमेंट चलती गई। फिर छोटी छोटी दुकानें गाँव में खुलनी शुरू हो गई। थोड़ी सी एजुकेशन हो गई, बच्चों को चिट्ठी पढ़ने की जाँच आ गई, छोटे मोटे गेम्स खेलने की जांच आ गई। ऐसे जो गवर्नमेंट पे आगे डेवलप करती रही, एक बहुत बड़ा तबादला होना शुरू हो गया। फिर लोग यहाँ से
एक बड़ा बढ़िया प्रोग्राम बन गया, लोगों ने हज पर जाना शुरू कर दिया। उस वक्त हज पर जाना बड़ा मुश्किल था, लोग ऐसे अपनी गरीबी में लेके जाते थे और वहाँ काम काज करते थे, वहाँ से भी वापस आते थे, पैसे लेके आते थे। एक शेख साहब ने एक पॉलिसी बनाई कि यहाँ के लोग मैट्रिक अगर 6 साल में भी बिगड़ेंगे तो एक पेपर देके पास करें ताकि ये मैट्रिक लेट करवाएं। उस पॉलिसी ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। सब बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक कर गई, फिर हर घर में नौकरी आ गई, जागृति और बढ़ने लगी। फिर लोगों ने और ज़्यादा जाके हमारे इस इलाके से लोग पूरे हिंदुस्तान में घूमने शुरू हो गए। हिंदुस्तान में जाके ये लोग दुकानों पर काम करते थे, मजदूरियाँ करते थे, होटलों में काम करते थे। ये लोग जिस वहाँ से वापस आए, इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ, ये लोग वही सारा कल्चर यहाँ अपने यहाँ इलाका फैलाना शुरू कर दिया। 2008 में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का दौर आया, उनकी हुकूमत बनी तो सेंटर से उन्होंने 4 कॉलेजेस और मंजूर करवाए। 2 श्रीनगर में दिए, 2 सुबह जम्मू में, और सुबह जम्मू में से एक हमें सुरनकोट में मिला। उस वक्त भी बड़ी लैंड की प्रॉब्लम बनी। फिर मैंने वॉलंटियर होके कहा कि भाई बच्चे गुरबा लोग जो हैं उनके बच्चे ज़हीन हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने रेट मुकर्रर नहीं किया। मैंने कहा गवर्नमेंट जो रेट देगी, मगर कॉलेज हमारे गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से वक्ती हुकूमत ने और मरकज़ ने इसको एक्सेप्ट किया, हमारी इस अपील को, तो कॉलेज बन गया। आज अल्लाह के फजल से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। पहले फसल जो बीजे जाते थे, लोकल मक्की, लोकल धान हुआ करता था, बैलों से हल जोती जाती थी। धीरे धीरे तरक्की होती गई, साइंस ने बड़ा रोल अदा किया इसमें, और अच्छे अच्छे बीज भी मिले, खाद भी मिली, और ज़मीन ब्रीद करने के लिए ट्रैक्टर, अब यहाँ तक कि उसकी गवाही और कटाई में भी मशीनरी ही से काम चलता है। वो हमारे इलाके में अभी कटाई का या उसके दान निकालने का सिलसिला मशीनी नहीं है। वो आज भी हम वही पुराने हिसाब से ही ट्रैक्टर को घुमा पर आके बस निकाल लेते हैं। That was the history of सुरनकोट, जो कि हम बयां कर पाए अपनी इन वीडियो क्लिप्स के थ्रू। और मैं हर उन बुज़ुर्ग का शुक्रगुजार हूँ जिनने कि हमें अपने साथ बैठाया, अपना कीमती वक्त दिया, ना कि अपना कीमती वक्त दिया बल्कि हमारी मेहमानवाजी की। इतने बड़े बड़े ओहदों पे होने के बावजूद उनने हमसे इतना प्यार से बात की, इतने मीठे तरीके से बात की कि मैं क्या बताऊँ। बाकी जो भी लोग इस वीडियो के थ्रू हमसे जुड़े हैं, जितने भी हमारे क्रू मेंबर हैं, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सबके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। पीस आउट।